Hello friends, today we are going to discuss the questions related to operating system. Operating system is one of the most important subjects in the computer science stream. In this video series, this is the first part, and after this video there will be another part, and all these parts will contain the questions of operating system. In this video we are going to discuss the basic level of questions related to operating system. These questions are most frequently asked in the Viva exams or the university college semester exams. These questions are also asked in many job interview or in the interview at the time of university college admission. So let's start the video. Before starting the video, if you are new to our channel, then kindly subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notifications what we are uploading on this channel. So let's get started. These are the contents of video. In this part we will discuss the basic operating system interview questions, and in the next video I will discuss the intermediate operating system interview questions, and in the last video, that is third part, in that video I will discuss the advanced operating system questions. So in this video let's start. First of all, this is the basic questions which I would like to discuss. What do you mean by the operating system? What are its basic function? It means कि operating systems क्या है और इसका basic function क्या है. Operating system is basically a software program that manage and handles all the resources of a computer such as hardware and software. Operating system basically ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसके रिसोर्स को मैनेज करता है. The first operating system introduced in the early 1950 known as GMO, यानी कि पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1950 में किया गया था. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, हैंडलिंग एंड coordinating overall activities and sharing the computer resources. It acts as an intermediary among users of computers and computer hardware. आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, there is a hardware at the bottom and in between there is software. In software there is system software, application software and operating system software, and there are different users. It means that if the user is interacting with software, either system software or application software, then operating system is responsible for providing the hardware to that user in efficient manner so that all the users can utilize the resources. And another question is function of operating system. There are many functions of operating system. Some of the main functions are mentioned here: memory and process management, providing user interface to the users, file management and device management, scheduling of the resources and jobs, error detection and security. These are the usage of operating system, functions of operating system. Our next question is, that is of the basic level of interview questions of operating system, that is why is operating system important. Operating system हमारे लिए important क्यों है? Operating system is most essential and vital part of computers without which it is considered useless. यानी कि operating system अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हमारा कंप्यूटर क्या है, useless है. It enables an interface or acts like the link for interactions between computer software that is installed on OS and users. यानी कि ये हमारा क्या करता है, यूजर और हमारा जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके बीच में क्या करता है, इंटरेक्शन का लिंक क्रिएट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर एंड ऑल्सो मेंटेन बैलेंस अमंग हार्डवेयर एंड सीपीयू. इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू यूजर्स एंड परफॉर्म द प्लेटफॉर्म फॉर रन प्रोग्राम्स. इट परफॉर्म ऑल कॉमन टास्क ऑफ द एप्लीकेशन. का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है हमारे सिस्टम में जो क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन करता है और जितना भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उस सब में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. What are the main purpose of operating system? What are different type of operating system? Operating system का main purpose क्या है और इसका different types क्या है? The main purpose of operating system is to execute a user program and make it easier for user to understand and interact with the computer as well as run application. यानी कि main purpose जो operating system का ये है कि हमारा जो भी यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता है उसको एग्जीक्यूट करे और क्या करे, यूजर के लिए ईजियर हो अंडरस्टैंड करने में और उससे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में. It is especially designed to ensure that the computer system perform better by managing all computational activities. It also manage computer memory, process and operations of the all hardware and software. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा जितना भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट करना हो, प्रोसेस मैनेजमेंट करना हो या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मैनेजिंग करना हो, ये सब क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहला होता है बैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरोल सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेस. अगला है मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल विंडोज, यूनिक्स. अगला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज मल्टिक्स. एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज लोकस. एंड लास्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज PSOS एंड VRTX. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. देन a multiprocessor system is a type of system that includes 2 or more CPU. यानी कि मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में हमारा क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा CPU होता है.
It involves the processing of different computer programs at the same time, mostly by computer systems with two or more CPU are sharing single memory. It means कि इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा CPU रहेगा और इसमें क्या होगा, जितना भी प्रोसेस है एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ इसमें एग्जीक्यूट होगा। और इसमें जनरली क्या होता है कि अलग अलग जो CPU होता है वो सेम ही मेमोरी को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि सेम ही मेमोरी को शेयर करता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में। इसका बेनिफिट क्या है कि such systems are used widely nowadays to improve performance in the systems that are running multi programs concurrently। यानी कि ये अगर मेरा कोई सिस्टम है जिसमें एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूज करते हैं। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर ग्रेटर नंबर ऑफ टास्क कैन बी completed in the यूनिट टाइम। यानी कि हमारा जो भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है यूनिट टाइम में क्या होता है, नंबर ऑफ टास्क परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, यानी कि इसका थ्रूपुट ज़्यादा होता है। वन ऑल्सो गेट्स अ considerable increase in throughput and is cost effective also as all processors share the same resources। यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है लेकिन हमारे सेम ही रिसोर्स को सब शेयर कर रहे हैं, तो इससे मेरा क्या होता है, कोस्ट इफेक्टिव होता है। इट्स सिंपली इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम का जो भी रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। What is RAID structures in OS? What are the different levels of RAID configurations? RAID का फुल फॉर्म होता है Redundant Array of Independent Disk, is a methods used to store data on the multiple hard disks. Therefore, it is considered as a data storage virtualization technology that combines multiple hard disk। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा जो भी डाटा स्टोरेज का वर्चुअल वे में हमारा क्या होता है, एक टास्क को स्टोर करने का ये स्ट्रक्चर है। इट सिंपली बैलेंस डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम्स परफॉर्म स्टोरेज स्पेस एक्सेट्रा। ये हमारा क्या होता है, बैलेंस करता है डाटा प्रोटेक्शन का, सिस्टम परफॉर्मेंस का और स्टोरेज स्पेस का। इट इज यूज टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा स्टोरेज। यानी कि जो भी मेरा डाटा स्टोर हो रहा है इसमें क्या होता है, वो परफॉर्मेंस उसका इंक्रीज करता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम्स एंड इट्स मेन पर्पज इज टू अचीव डाटा रिडंडेंसी टू रिड्यूस द डाटा लॉस। यानी कि हमारा क्या होता है, जो भी रेड स्ट्रक्चर यूज होता है इसका मेन पर्पस होता है कि हमारा डाटा लॉस ना हो, डाटा रिडंडेंसी को काफ़ी कम किया जाता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेड क्या होता है, नाउ डेज रेड इज अवेलेबल इन द वेरियस स्कीम्स और रेड लेवल्स आर गिवन बिलो। इट मीन्स यहाँ की आप देख सकते हैं डिफरेंट लेवल, यानी कि इसमें कितना लेवल दिया हुआ है, 7 डिफरेंट लेवल दिया हुआ है, लेवल 0 टू लेवल 6। यू कैन रीड हेयर, फर्स्ट इज लेवल 0 दैट इज नॉन रिडंडेंट स्ट्राइपिंग, लेवल 1 दैट इज माइक्रोनिंग एंड डुप्लेक्सिंग, level 2 is memory style error connecting code, level 3 is bit interleaved parity, level 4 is block interleaved parity, level 5 is block interleaved distributed parity and level 6 is P plus Q redundancy। तो आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GUI? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI इज बेसिकली अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस दैट अलाउ यूजर्स टू यूज ग्राफिक्स टू इंटरेक्ट विथ OS। यानी कि ये हमारा क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस जो होता है जो कि अलाउ करता है हमारे यूजर्स को ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। GUI इज क्रिएटेड बिकॉज इट इज मोर यूजर फ्रेंडली। ये हमारा क्या होता है, मोर यूजर फ्रेंडली होता है, लेस कम्प्लेक्स एंड इजियर टू अंडरस्टैंड रेदर देन कमांड लाइन इंटरफेस। यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस से क्या होता है, ये काफ़ी ईजियर होता है अंडरस्टैंड करने में, इसलिए इसको हम लोग इंट्रोड्यूस किए। इट्स मेन गोल इज टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड एज ऑफ यूजेज। इंस्टीड ऑफ हैविंग द मेमोरी कमांड यूजर्स कैन जस्ट क्लिक ऑन द बटन टू सिंपली एग्जीक्यूट द प्रोसीड्योर। यानी कि जो भी हमारा पहले कमांड लाइन से एक्टिविटीज किया जाता था, प्रोसेस किया जाता था, वो सब क्या है GUI के थ्रू काफ़ी इजीली हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ GUI इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक्स, एप्पल्स iOS एक्सेट्रा। यानी कि इसका कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पाइप एंड व्हेन इट इज यूज्ड? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पाइप इज जनरली a connections among two or more processes that are interrelated to each other। यानी कि पाइप क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस का क्या होता है, कनेक्शन होता है। इट इज अ मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस यूजिंग मैसेज पासिंग। यानी कि क्या होता है, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल मैकेनिज्म है। वन कैन इजिली सेंड इंफॉर्मेशन सच एज द आउटपुट ऑफ वन प्रोग्राम प्रोसेस टू अनदर प्रोग्राम प्रोसेस यूजिंग अ पाइप। यानी कि एक प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है वो हम दूसरे प्रोग्राम को भेज सकते हैं थ्रू द पाइप। इट कैन बी यूज्ड व्हेन टू प्रोसेस वांट्स टू कम्युनिकेट वन वे, दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC। यानी कि एक दूसरे प्रोग्राम से ये क्या करता है, कम्युनिकेट करने में भी यूज होता है।
व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस दैट आर पॉसिबल्स ऑन सेमाफोर। सेमाफोर जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन है जो परफॉर्म होता है। देयर आर बेसिकली टू एटॉमिक ऑपरेशंस दैट्स आर पॉसिबल, दैट इज वेट एंड सिग्नल। व्हाट इज बूट स्ट्रैप प्रोग्राम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है। इट इज जनरली अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्टअप दैट इज फर्स्ट कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टअप। यानी कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो पहला कोड एग्जीक्यूट होता है वो बूट स्ट्रैप ही होता है। OS is loaded through the bootstrapping process और प्रोग्राम कॉमनली नोन एज बूटिंग। इसके बाद से जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है, इसको हम बूटिंग बोलते हैं। ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली डिपेंड ऑन द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम टू परफॉर्म एंड वर्क करेक्टली। अगर मेरा बूटस्ट्रैप जो चीज़ भी है, बूटस्ट्रैप जो है, अगर वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज फुली स्टोर्ड इन बूट ब्लॉक एट अ फिक्स्ड लोकेशंस ऑन द डिस्क। ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो बूट ब्लॉक में स्टोर होता है जो कि एक फिक्स्ड लोकेशन है डिस्क में। इट ऑल्सो लोकेट द कर्नल एंड लोड्स इट इनटू द मेन मेमोरी आफ्टर विच द प्रोग्राम स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। इसका क्या काम होता है कि मतलब इसके बाद कर्नल भी क्या होता है, लोड होता है मेन मेमोरी में, और उसके बाद से हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे यहाँ पे पहले दिया हुआ है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या है, यहाँ पे आपका रैम है। रैम के अलावा इसमें कुछ स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिया गया है और कुछ स्पेस जो है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम के लिए दिया गया है, यानी कि रोम को दिया गया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या होता है, बूट स्ट्रैप क्या करता है, रीड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर लोड होता है और इसके बाद से क्या होता है, डिवाइस मेरा स्टार्ट होता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग क्या होता है। डिमांड पेजिंग इज अ मेथड दैट लोड पेजेज इनटू मेमोरी ऑन डिमांड। यानी कि जो भी मेरा पेज अवेलेबल है उस चीज को क्या करता है, मेमोरी में लोड करता है व्हेन, जब मेरा उसका डिमांड हो। दिस मेथड इज मोस्टली यूज इन वर्चुअल मेमोरी। ये मेरा क्या यूज होता है, वर्चुअल मेमोरी में यूज होता है। इन दिस अ पेज इज ओनली ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी व्हेन अ लोकेशंस ऑन द पर्टिकुलर पेज इज रिफरेंस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली फॉलोड। यानी कि जब इसका कोई भी लोकेशन जो होता है वो रेफरेंस्ड होता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तभी मेरा क्या होता है, पेज जो है लोड होता है। अब इसका यहाँ प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया है, अटेम्प्ट टू एक्सेस द पेज। सबसे पहले मेरा क्या होता है कि जो भी मेरा अटेम्प्ट होता है पेज को एक्सेस करने के लिए, इफ द पेज इज वैलिड, अगर मेरा पेज वैलिड है, देन कंटिन्यू प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एज नॉर्मल। यानी कि अगर मेरा पेज वैलिड है, पेज अवेलेबल है, तो मेरा क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है। इफ द पेज इज इनवैलिड देन पेज फॉल्ट ट्रैप आकर्स। अगर मेरा पेज अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ पे क्या आता है, पेज ट्रैप आता है, पेज फॉल्ट आ जाता है। चेक इफ मेमोरी रेफरेंस इज वैलिड, रेफरेंस टू द लोकेशंस ऑन अ सेकेंडरी मेमोरी, इफ नॉट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या मेरा जो सेकेंडरी मेमोरी पे जो लोकेशन है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो क्या होता है, मेरा जो भी प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है। अदरवाइज वी हैव टू पेज इन द रिक्वायर्ड पेज। अगर नहीं होगा तो मेरे पास जो भी रिक्वायर्ड पेज है वो अवेलेबल होगा। शेड्यूल्ड डिस्क ऑपरेशंस टू रीड द डिजायर्ड पेज इनटू मेन मेमोरी। नेक्स्ट है रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शंस दैट वाज इंटरप्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैप। इसके बाद से हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं अपना जो भी इंस्ट्रक्शंस जो रीट्रैप होता है, उसको जो भी ट्रैप हुआ रहता है उसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय RTOS। RTOS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर रियल एप्लीकेशन दैट इज फॉर दोज एप्लीकेशंस वेयर डाटा प्रोसेसिंग शुड बी डन इन अ फिक्स्ड एंड स्मॉल मेजर ऑफ टाइम। यानी कि जो भी मेरा एप्लीकेशन है जिसमें टाइम फिक्स्ड है कि मेरा ये जो प्रोसेस है इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, तो उस चीज़ का क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज होता है। इट इज परफॉर्म्ड मच बेटर ऑन टास्क दैट आर नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट टाइम। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड ऑल कंट्रोलिंग प्रोसेस। इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी एंड कंज्यूम फीवर रिसोर्सेज। यानी कि जो भी मेरा ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है काफ़ी फास्ट होता है और ये किसी एक फिक्स टाइम के अंदर ही परफॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सिंपल सा इसमें समझ लीजिए, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि जिसका टाइम फिक्स है। जैसे मेरा मिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम है,
तो वो चीज़ में क्या होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है कि मेरा 1:25 और 26 सेकंड पे मिसाइल मेरा एग्जीक्यूट करना है, तो उतना ही पे वो होगा, उसमें 1 सेकंड का भी डिले नहीं देखा जाएगा। अगर वहीं हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो ये हमारा बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। अगर मेरा कोई ट्रांजेक्शन जो होता है बहुत बार पेंडिंग में चला जाता है, तो इसमें क्या हो गया, इसका कोई भी टाइम का मतलब उतना ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, तो इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज बेसिकली वे टू कोऑर्डिनेट ए प्रोसेस दैट यूज शेयर्ड रिसोर्सेज ऑफ डाटा। यानी कि मान लीजिए कि कोई मेरा प्रोसेस है, वो शेयर्ड रिसोर्सेज यूज कर रहा है। शेयर्ड रिसोर्सेज इन द सेंस कि एक ही रिसोर्स है और उसको बहुत सारा प्रोसेस इस्तेमाल करता है, तो उसी को ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। इट इज़ वेरी मच इसेंशियल टू इंश्योर synchronized executions of cooperating process so that they will maintain data consistency। अगर ये मेरा सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, डाटा रिडंडेंट हो जाएगा, डाटा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। द मेन पर्पस इज टू शेयर रिसोर्सेज विदाउट एनी इंटरफेस यूजिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यानी कि मेरा एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो उसमें क्या हो, सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इसका दो टाइप है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आईपीसी, व्हाट आर द डिफरेंट आईपीसी मैकेनिज्म? आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आईपीसी इज अ मैकेनिज्म दैट रिक्वायर्स द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक अ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। यानी कि आईपीसी क्या होता है, आईपीसी एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, दैट रिक्वायर्स टू यूज रिसोर्सेज लाइक अ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बिटवीन प्रोसेस एंड ए थ्रेड। यानी कि थ्रेड और प्रोसेस के बीच जो क्या हो, शेयर्ड हो। विथ आईपीसी ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ डिफरेंट प्रोसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आईपीसी के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। इट इज सिंपली यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन मल्टीपल थ्रेड्स इन वन और मोर प्रोग्राम और अ प्रोसेस। यानी कि इसका यूज हम करते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर लेते हैं बिटवीन द मल्टीपल थ्रेड और मोर देन वन, मतलब एक थ्रेड या एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस से ज़्यादा में क्या करते हैं, हम डाटा को एक्सचेंज करते हैं। इन दिस मैकेनिज्म डिफरेंट प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ अप्रूवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अप्रूवल के बाद डिफरेंट प्रोसेस क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। डिफरेंट आईपीसी मैकेनिज्म क्या है, पाइप्स है, मैसेज क्यूइंग है, सेमाफोर, सॉकेट, शेयर्ड मेमोरी एंड सिग्नल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी इज अ कंप्यूटर, मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज अ रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी और रीड राइट मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जिसमें रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं और या फिर इंटरनल मेमोरी भी जानते हैं। द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द सीपीयू रिक्वायर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। जो भी मेरा डाटा चाहिए सीपीयू को एग्जीक्यूशन के टाइम, वो सब कहाँ स्टोर होता है, तो मेरा मेन मेमोरी में स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर द स्टोरेज डिवाइस दैट कैन ओनली स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। जो कि मेरा क्या करता है, एक ये भी स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। इट ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और एडिशनल मेमोरी और बैकअप मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। इसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडिशनल मेमोरी, बैकअप मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी। सच स्टोरेज डिवाइस आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा। इसमें बहुत सारा मतलब बल्क अमाउंट में डाटा स्टोर हो जाता है। स्टोरेज डिवाइस कैन बी हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, सीडी एक्सेट्रा। मतलब ये कुछ स्टोरेज डिवाइस दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस बताया गया है। डाटा कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी का बात करें, फर्स्टली डाटा इज ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी एंड आफ्टर देन रूटेड टू द प्रोसेसिंग यूनिट। पहले डाटा कहाँ ट्रांसफर होगा, प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होगा, फिर मेरा प्रोसेस के पास जाएगा। फिर बोलता है प्राइमरी मेमोरी में इट कैन बी बोथ वोलाटाइल्स एंड नॉन वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल दोनों होगा प्राइमरी मेमोरी में। वहीं सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है। प्राइमरी होता है इट इज मोर कॉस्टली देन सेकेंडरी मेमोरी। ये काफ़ी मतलब हाई कॉस्ट होता है प्राइमरी मेमोरी का। वहीं सेकेंडरी मेमोरी का बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये टेम्प्रोरी होता है और डाटा मेरा टेम्प्रोरली यूज स्टोर होता है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी में डाटा मेरा परमानेंट स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी का था, इन दिस मेमोरी डाटा कैन बी लॉस्ट वेन एवर देयर इज अ पावर फेलियर। मेरा अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है
पावर खत्म हो जाता है तो डाटा मेरा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। वहीं सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है, डाटा मेरा स्टोर ही रहता है अगर मेरा सिस्टम फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो गया इसके बाद भी। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी बोलता है इट इज मस्ट फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी एंड सेव्स डाटा दैट इज करेंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर। यानी कि जो भी मेरा प्राइमरी मेमोरी है ये मस्ट फास्टर, यानी कि मच फास्टर, यानी कि ये इसका मच फास्टर बोलने का मतलब हुआ कि जो भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी फास्ट होता है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी एंड सेव्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये स्लो इसलिए होता है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग डाटा को स्टोर करता है। वहीं प्राइमरी मेमोरी का बात करें, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय डाटा। ये क्या होता है, डाटा के द्वारा एक्सेस कर लिया जाएगा। और इट कैन बी एक्सेस्ड बाय आईओ चैनल, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आईओ चैनल ही इसको एक्सेस करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओवरलेज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओवरलेज इज बेसिकली अ programming method that say dividing process into pieces so that instructions that are important and need can be saved in memory। ये क्या होता है, मतलब जो भी मेरा important instructions है वो सब चीज़ को क्या होता है मेमोरी में सेव करने में हेल्प करता है। इट डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी प्रकार से कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए। इट कैन रन प्रोग्राम्स दैट आर बिगर इन साइज देन फिजिकल मेमोरी बाई only keeping only important data and instructions that can be needed at a given time। यानी कि जो भी मेरा ये ओवरलेज है ये क्या करता है कि जितना मेरा मेमोरी है उससे ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम भी क्या होता है एग्जीक्यूट कर लेता है। एग्जीक्यूट कैसे करता है, तो सपोज कीजिए किसी मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम पे सिर्फ 5 MB मेमोरी स्पेस ही चाहिए, तो सिर्फ 5 MB मेमोरी स्पेस ही एग्जीक्यूट करेगा, चाहे प्रोग्राम मेरा 100 MB का क्यों ना हो। तो क्या होता है, ये स्टोरेज से अगर ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है उसको भी एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन है, राइट टॉप 10 एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टॉप 10 एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज, उबांटू, मैक ओएस, फेडोरा। यानी कि यू कैन सी हियर द लिस्ट आर 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर द बेसिकली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड टुडे वी आर स्टॉपिंग दिस वीडियो till we are cover the 15 questions that are of basic level. In the next video I will cover the questions that is of intermediate level operating system. You can see here the list of questions. I have covered these basic operating system interview questions up to 15, and in the next video you will get the video of intermediate operating system interview questions that is from 16 to 30, and after that a new video will published. In that video you will get the questions from 31 to 43 of advanced level, that is in the most of the job interview questions these questions are asked.